الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے جس مذہب کے ساتھ ہم کو جوڑا ہے وہ مکمل مذہب ہے، اور اس مذہب میں ہر طریقے سے رہنمائی عطا کی گئی ہے۔ مذہب اسلام واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے، کہیں بھی تشنا نہیں چھوڑا ہے، کسی بھی لائن میں کسی اور جہت میں متوجہ ہونے، کسی اور جگہ سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، سارا کچھ شریعت میں موجود ہے۔ فرائض، واجبات، سنن، مستحب، مندوب، ایسے ہی حرام، مکروہ تحریمی، تنزیہی، غرض کے ہر زاویے سے رہنمائی کی گئی ہے، سارا کچھ کھول کر رکھ دیا گیا ہے۔ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کرنے پر اللہ کی رضا ملنے والی ہے، کیا کرنے پر اللہ کی ناراضگی ہاتھ آنے والی ہے، کس راستے پر چل کر صراط مستقیم پر گامزن رہے گا بندہ، اور کس راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے وہ بھٹک جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا، سارا کچھ بتا دیا گیا ہے۔ کتاب ہدایت عطا کر دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، آپ کی ساری زندگی اسوہ بنا کر پیش کر دی گئی، انسانیت کو بتا دیا گیا کہ اسے کس راستے پر چلنا ہے اور کیسے چلنا ہے، راستہ بھی بتا دیا، چلنے کا طریقہ بھی بتا دیا، نیکی بھری زندگی بھی کھول کر رکھ دی گئی، اور بدی والی، گناہوں والی زندگی بھی آشکارا کر دی گئی۔ کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے، کیا ثواب ہے، کیا عذاب ہے، سب کچھ بتا دیا گیا۔ اب بندے کی چوائس ہے، وہ چنتا کیا ہے۔ اختیار دے دیا گیا دنیاوی زندگی میں، چاہے جس راستے کو وہ چنے، اور انجام بھی بتا دیا گیا، نیکی کا انجام بھی بتا دیا گیا، بدی کا انجام بھی بتا دیا گیا۔ اس کے باوجود، یہ ساری چیزیں آشکارا کرنے کے باوجود، بندہ تیزی سے لپک رہا ہے بدی کی طرف، گناہ کی طرف، شیطانی سجھائے ہوئے راستوں کی طرف، تو اس پر بھی متنبہ کیا گیا کہ شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا، تمہیں بہکائے گا، پھسلائے گا، اللہ سے اور شریعت سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، اس سے بچنا ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، سب کچھ بتا دیا۔ چنانچہ قرآن کی مشان میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے مسلمان بنو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے سجائے ہوئے راستے پہ مت چلو، اس کے نقش قدم کو اختیار مت کرو،
इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम शान में इरशाद फरमा रहे, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, तक़वा और नेकी के कामों में एक दूसरे की हेल्प करो, मदद करो, ताउन करो, रहनुमाई करो, नेकी के फैलाने में मुहिम बनो, मददगार बनो। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और मासियत के कामों में एक दूसरे की हेल्प मत करो, मुआविन बन बनो, गुनाह के फैलाने के मुआविन मत बनो। तुम्हारी जात से गुनाह ना फैलने पाए, बुराइयां ना फैलने पाए, खराबियां ना फैलने पाए, अच्छाइयां, नेकियां, तकवे भरी जिंदगी तुम्हारी जात से फलने फूलनी चाहिए, फैलनी चाहिए। एक ईमान वाला अपनी जिंदगी से खैर फैलाता है, शर के दरवाजे उसकी जिंदगी में आकर बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई शर फैलाने वाला बन रहा है और खैर को अपने लिए बंद कर रहा है, तो ये उसके लिए बहुत बुरी बात है और बुरे अंजाम की अलामत है। और हर चीज के दोनों, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर चीज में अच्छाई और बुराई दोनों हिस्से हैं। आदमी अगर उसको अच्छाई के साथ करेगा तो अच्छाई बन जाएगी, बुराई वाले पहलू को इख्तियार करेगा तो बुराई बन जाएगी। मामूली एक कारोबार आदमी कर रहा है, शरीयत उसकी रहनुमाई कर रही है कि अगर वो दियानतदारी के साथ कारोबार करेगा, सच बोलकर कारोबार करेगा और अपने माल को साफ सुथरा रखकर कारोबार करेगा तो खैर बरकत का बाइस है। और यही कारोबार है उसमें झूठ बोलेगा, उसमें लोगों को धोखा देगा, दगा देगा, झूठी कस्में खाएगा, लोगों को बेवकूफ बनाएगा और समझेगा कि मैंने बहुत अक्लमंदी का काम कर दिया, तो यही कारोबार उसके लिए वबाल जान बच जाएगा, दुनिया और आखिरत में वबाल बनेगा, पकड़ का जरिया बनेगा। हर जाविये में आप देखिए, जिंदगी के हर जाविये में दोनों पहलू आपको मिलेंगे। अच्छाई वाले पहलू पर भी चल सकते हैं और उसमें बुराई वाला पहलू भी है, उस पर भी अगर आदमी चलेगा तो उसके लिए खतरा है, उसकी आखिरत, दुनिया और आखिरत बर्बाद होने की वजह बनेगा वो काम, अगर वो बुराई वाला रास्ता इख्तियार करे। ये इंतखाबात के दिन है, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप गौर करेंगे तो उसमें आपको खैर वाले पहलू भी दिखेंगे, शर वाले और बुराई वाले पहलू भी दिखेंगे, उसमें जायज काम भी दिखेंगे, नाजायज काम भी दिखेंगे। एक आदमी दियानतदार है और वो अपने हलके में लोगों के लिए वफादार है, उसके दिल में उम्मत का दर्द है, आवाम का दर्द है, जिस जगह से वो खड़ा है वहां के रहने वाले वासियों के लिए वो सोचता है, उनके काम आता है। अब ये जो भला मानुस है, अच्छा इंसान है, अब इसका प्रचार कर रहे हैं, अब इसकी हिमायत कर रहे हैं, इसका साथ दे रहे हैं, आप खैर का काम कर रहे हैं। एक जालिम आदमी है, लोगों पर जुल्म करने वाला है, लोगों के साथ लूट खसूट करने वाला है, लोगों पर जुल्म करने वाला है, उनके काम नहीं करने वाला है, 5 साल तक बैठकर खाने वाला है और उस हलके में जाकर झांकने भी वाला नहीं है। आपको पता है यह आदमी हमारा काम नहीं करेगा, लेकिन चंद रुपयों के मिलने के लिए आप उसका साथ दे रहे हैं, उसकी हिमायत कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं, आप जुल्म का साथ दे रहे हैं, शरीयत के बताए हुए रास्ते से हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं। कुरान शान में अल्लाह फरमाने वाला ताआवुनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और मासियत के कामों में हेल्प मत करो, आप कर रहे हैं। एक आदमी अपने आप को किसी ओहदे पर बरकरार रखने के लिए वक्ती तौर पर पैसे तकसीम कर रहा है, जबकि शरीयत का यह उसूल बारहा आपने सुना होगा कि ओट की हैसियत शरीयत में 2 से 3 बताई है, सिफारिश की है कि आप सामने वाले की सिफारिश कर रहे हैं कि यह आदमी हमारे नजर में मोतबर है, एतमाद वाला है, अच्छा है, यह हमारे हलके का काम करेगा, इसीलिए आप उसको वोट दे रहे हैं, आप उसकी
सिफारिश कर रहे हैं। दूसरी हैसियत शहादत की है कि आप गवाही दे रहे हैं कि जितने उम्मीदवार हमारे हल्के से खड़े हैं उसमें ये जो मखसूस बंदा है इसके लिए मैं गवाही देता हूं और देकर कि ये बंदा हमारा काम करेगा, ये अच्छा है, ये भला है, ये मुंतखब होने जैसा है, चुनकर आने जैसा है। आप ये गवाही दे रहे हैं। और ये दोनों पहलू में अगर रकम ली जा रही है, गवाही देते हुए किसी आदमी की गवाही के लिए बुलाया जाए तो कुरान अज़ीम शान का उसूल है कि जाना चाहिए, गवाही देने के लिए जाना चाहिए, तो और देना है। लेकिन इस शहादत पर या इस सिफारिश पर पैसा लिया जा रहा है तो यह हराम है, जायज नहीं है। मुफ्ती इस्माइल साहब कासमी मालेगांव शहर के सियासी आदमी है, आलिम भी है, बहुत मुत्तकी परहेजगार बंदे हैं, आलिम है और सियासी है, यानी दोनों चीजें मजमूल बहरैन जिसको कहते हैं कि दोनों एतबार से तजुर्बात है, इल्मी एतबार से भी, दीनी एतबार से भी और समाजी और सियासी एतबार से भी। वो कह रहे हैं कि एक आदमी बहुत दूर रहता है अपने घर से, उसका वोटिंग बूथ बहुत दूर है, किराया देकर उसको जाने की नौबत आ रही है। जैसे होता है बहुत सारे लोगों के नाम बहुत दूर डाल दिए जाते हैं कि उनको दूर जाकर वोट देना है। अब इस आवक जामक में जो खर्च हो रहा है, आमद और रफ्त में जो खर्च हो रहा है, वो अगर खर्च कोई पार्टी दे रही है, कोई बंदा दे रहा है कि आपके आने जाने का खर्च मेरे जिम्मे, तो मुफ्ती इस्माइल कह रहे हैं कि ले सकते हैं, लेकिन वोट का पैसा नहीं ले सकते कि ये शहादत है, ये गवाही है, ये नाजायज है लेना। और ऐसे ही साथ देना भी है कि आपको मालूम है एक जालिम बंदा है, आप उसका साथ देंगे तो साथ देना भी गलत, उसका प्रचार करना भी गलत, उसके लिए पैसों का तकसीम करना भी गलत, उसके साथ चलना फिरना भी गलत। और जो अच्छा है, खैर वाला पहलू उसकी जिंदगी में है, लोगों के काम आने वाला बंदा है, तो उसके लिए हर काम करना सही। तो दोनों पहलू हर एतबार से ये मिसालें दी जा रही है, हर एतबार से आप देखेंगे शरीयत की रहनुमाई मौजूद है। अब आप चुनते कौन सा रास्ता, ये आपके ऊपर है। और अंजाम भी बता दिया गया है कि अच्छाई वाला, खैर वाला, नेकी वाला, तकवे वाला, अल्लाह के रजा वाला रास्ता आप चुनेंगे तो अल्लाह की खुशनुदी आपको मिलेगी, जन्नत आपको मिलेगी, अल्लाह की रजा आपको मिलेगी। और शर वाला, बुराई वाला, गुनाह वाला, मासियत वाला, जुल्म वाला, लोगों पर जुल्म कर रहा है कोई बंदा, वो रास्ते को आप चुन रहे हैं, उसकी हिमायत कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, उसके लिए चलत फिरत कर रहे हैं, तो ये आप गुनाह कर रहे हैं और इसका अंजाम अल्लाह की नाराजगी है, इसका अंजाम जो जहन्नम के बताए हुए अजाब है। दोनों पहलू हर एतबार से और जिंदगी के हर जाविये में शरीयत ने रखे हैं और आश्कारा कर दिया गया है, सब कुछ खोल खोल कर बता दिया गया है सब कुछ। अब आदमी पर है कि वो कौन सा रास्ता चुनता है। हाँ, तो ये जो इंतखाबात की आमद है, इसमें हिस्सा लेना है और हर एतबार से अपने आप को तैयार करना है कि मुझे जाना है वोटिंग बूथ पर, हर हाल में जाना है, वोट देना है। मेरा ये जमहूरी हक है, जमहूरियत का दिया हुआ हक है, मुझे इसको इस्तेमाल करना है और सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना है, सही जगह इस्तेमाल करना है। दियानत दारी की जो जगह है वहां इस्तेमाल करना है, लोगों के काम आने वाली जो जगह है, जो बंदा है जो लोगों के काम आ सकता है, जो जुल्म का साथ नहीं देगा, मजलूमों का साथ देगा, जो लोगों के जो बिगड़ते हुए काम है, फलाही रिफाई जितने काम है, वो काम जो करने का अहल है, करने की पोजीशन में है, उसको लाना है, उसको फतह याब करना है, उसको जिताना है और मुंतशिर होने से अपने आप को बचाना है। अक्सर ये होता है मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मुसलमानों के इज्तिमाई हुकूक को पामाल करने के लिए कि अगर वो इज्तिमाई एतबार से कोई डिसीजन लेंगे, कोई फैसला करेंगे तो कोई एक बड़ी चीज हो सकती है, मुसलमानों के हित में हो सकती है, मुसलमानों के मफाद में हो सकती है,
مسلمانوں کے حصے میں ہو سکتی ہے، اس سے بچانے کے لیے پیسے دے کر بہت سارے مسلمان کھڑے کیے جاتے ہیں، تو بھی کھڑا ہو جا، تو بھی کھڑا ہو جا، تو بھی کھڑا ہو جا۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کی ووٹ بڑھ جائیں، الگ الگ جگہ بٹیں گے تو کوئی بھی چن کر نہیں آئے گا۔ یہ بھی ایک سازش ہے جو رچی جا رہی ہے اور برسوں سے رچی جا رہی ہے، مسلمان اس کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو الگ الگ حصوں میں اپنے ووٹ کو بانٹ کر چلے آتے ہیں، ان کا ووٹ بظاہر ادا ہو جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، لیکن وہ کام نہیں آتا، کوئی کام نہیں آتا۔ تو اجتماعیت کے ساتھ، اتفاق رائے کے ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور اپنی اس جمہوری حق کا استعمال کریں، اور مسلمانوں کے لیے فلاحی، رفائی اور جتنے بھی زمینی سطح کے کام ہیں وہ کرنے جیسے جو بندے ہیں ان کو لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی زندگی کے ہر زاویے میں، زندگی کے ہر حصے میں اور 24 گھنٹے کی زندگی میں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے اس میں شریعت کی رہنمائی لیتے ہوئے، شریعت کی تعلیمات کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔